السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بات دماغ میں آتی ہے کہ یہ ہیکل سلیمانی اور تابوت سکینہ کیا ہے، اور ہم مسلمانوں کو اس کا پتہ بھی نہیں ہے، مطلب سب کو نہیں پتہ ہے، اور جب کو یہ بات سب کو پتہ ہونی چاہیے کہ ہیکل سلیمانی اور تابوت سکینہ کیا ہے۔ اور یہ اسرائیل جو لڑ رہا ہے، اسی کے لیے مین مدعا اس کا یہی ہے، تابوت سکینہ اس کو مل جائے، ان کا مدعا یہی ہے۔ تو یہ جب ہمارے حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے پیغمبر بنائے گئے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن کے دوسرے پارے کے لاسٹ پیج پر کیا ہے۔ جب اس کو ہم پڑھیں گے اور اس کا مطلب سمجھیں گے تو خود پتہ چل جائے گا۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ تابوت دیا، یہ تابوت عطا کیا ان کو، حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اور یہ تابوت جو ہے ایسی لکڑی کی بنی ہے جس کا نام شمشاد ہے، وہ بہت خوبصورت لکڑی ہے اور بہت مضبوط ہے، بہت خوشبودار بھی ہے، اور یہ 3 گز لمبا ہے اور 2 گز چوڑا ہے۔ تابوت سکینہ 3 گز لمبا اور 2 گز چوڑا۔ یہ نسل در نسل ہمارے پیغمبروں کے ساتھ چلتا رہا۔ تابوت سکینہ جو پیغمبر آتے رہے ان کو یہ ملتا رہا، اور لگ بھگ ہمارے دنیا میں تو 1,24,000 پیغمبر آئے، کتنوں کے تو ہم نام ہی نہیں جانتے ہیں۔ تو ان کو سیڑھی در سیڑھی ان کو یہ تابوت سکینہ ملتا رہا، اور یہ چلتے چلتے پیغمبروں سے چلتے چلتے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس یہ تابوت پہنچا۔ یعنی یہ تابوت جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا، اور یہ تابوت جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میں توریت کی تختیاں رکھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت کی تختیاں اور کچھ ضروری چیزیں بھی اس میں رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس تابوت سکینہ کے اندر حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ اور منہ اور سلوہ جس برتن میں نازل ہوتا تھا، وہ اور بہت سارے متبرکات پیغمبروں کے اس تابوت میں رکھے ہوئے تھے۔ تابوت سکینہ جو ہے اس میں بہت سارے متبرکات پیغمبروں کے رکھے ہوئے تھے۔ اس تابوت میں یہ تابوت جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے بڑا ہی متبرک تابوت تھا، بنی اسرائیل کے لیے بہت ہی متبرک تابوت تھا۔ وہ کیا کرتے تھے کہ جب بھی کہیں جنگ میں جاتے تھے تو اس تابوت کو اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے، اور تابوت کو ساتھ لے جاتے تھے، اور ان کو یہ تابوت بڑی آسانی سے یہ تابوت کے ساتھ جاتے تھے اور وہاں سے جنگ بھی جیت جاتے تھے۔ تابوت کو ساتھ میں لے کر جاتے تھے اور جنگ بھی فتح کر لیا کرتے تھے۔ مصیبت کے وقت یہ تابوت کام آتا تھا، جب ان کے اوپر مصیبت آتی تھی تو بھی یہ تابوت ان کے کام آتا تھا۔ مشکلوں میں ان کی مشکلیں آسان ہو جاتی تھیں۔
इस ताबूत को अपने पास ये रखते थे, कहीं भी जाते थे तो साथ लेके जाते थे, जंग में जाते थे वहाँ साथ लेके जाते थे। तो इनके लिए इतना मुतबर्रक ताबूत था ये ताबूत शकीना। जैसे हमारे लिए खाना काबा है, उनके लिए ये ताबूत सकीना था। हमारे लिए आज क्या है? खाना काबा है, और उनके लिए तब ताबूत सकीना था। अब ये इससे ये रूहानियत भी हासिल करते थे। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पैगंबर बनाए गए, जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पैगंबर बनाए गए, तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से एक मस्जिद बनाने का इरादा किया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से एक मस्जिद बनाने का इरादा किया, और ये जो मस्जिद बनी वो मस्जिद अक्सा कहलाई। और ये जो मस्जिद बनी, और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मस्जिद की तामीर की। जो मस्जिद के एरिए की जगह है, जो मस्जिद के एरिए की जगह है, उसे हैकले सुलेमानी कहते हैं। मस्जिद अक्सा, जिसको मुसलमान मस्जिद अक्सा कहते हैं और यहूदी उसको हैकले सुलेमानी कहते हैं। और अभी ये मस्जिद बनकर तैयार भी नहीं हुई थी कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वसीयत की। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद के वसीयत के मुताबिक इस मस्जिद अक्सा को मुकम्मल करवाया, और इस मस्जिद अक्सा को मुकम्मल करवाने में उन्होंने जिन्नातों का सहारा लिया। जिन्नातों का सहारा लिया सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। और जिन्नात जो है वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से बेइंतहा डरते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो कहते थे वो उसे करने के लिए तैयार रहते थे। इतना खौफ था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिन्नों के अंदर, जिन्नातों के अंदर। तो अल्लाह के तरफ से हुक्म हुआ, अभी 1 साल का काम मस्जिद अक्सा को बनाने में रह गया था, मतलब काम रह गया था। तो अल्लाह का हुक्म हुआ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कि अल्लाह आपको बुलाना चाहते हैं। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं दुनिया से रुखसत हो गया तब तो ये फिर अधूरा रह जाएगा। हमारे वालिद ने शुरू किया और वहाँ भी अधूरा रह गया। अल्लाह ने उन्हें बुला लिया, फिर मेरा भी वक्त आ गया है। तो उन्होंने क्या किया, अपने विसाल से पहले जिन्नातों को इकट्ठा करके सारा काम समझा दिया कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, जल्दी करना है और जल्दी से इस काम को कंप्लीट करना है, क्योंकि मैं अल्लाह की इबादत में मशगूल होने जा रहा हूँ और तुम्हें काम करना है, मैं मशगूल होने जा रहा हूँ इबादत में अल्लाह की। तो क्योंकि वो डरते बहुत थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से, वो अपने काम में लग गए। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो उनका जो मेहराब था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का, वो बहुत ही खूबसूरत था, एकदम शीशे का था। वो अगर अंदर इबादत करते तो सब कुछ साफ नज़र आता था, इतना मतलब आर पार दिखाई देता था। तो वो अपने असा पे टेक लगाकर मशगूल हो गए अल्लाह की इबादत में, और अल्लाह अपने पास बुला लिया। लेकिन जिन्नातों को पता नहीं था, वो अपने काम में मशगूल रहे। उनको पता था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह की इबादत में मशगूल हैं। इसी तरह 1 साल का वक्त गुजर गया।
और वो अपने काम में मशगूल रहे, बहुत तेज़ी से काम करते रहे। जब 1 साल में काम कंप्लीट हो गया तो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के तरफ से हुक्म हुआ चींटियों को। जब वो काम मस्जिद अक्सा का कंप्लीट हो गया, जिन्नातों ने पूरी कर दिया, तो अल्लाह के तरफ से हुक्म हुआ चींटियों को कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के असा को खाना शुरू करो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के असा को, जिस पे वो खड़े थे, सहारा लेकर खड़े थे, उसको खाना शुरू करो। कुरान मजीद में इसको दावतुल अर्ज कहा गया है। तो चींटियों ने खाना शुरू किया। जब खाना शुरू किया तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम गिर पड़े। तब जिन्नातों को लगा, ओहो, ये तो अल्लाह ताला के पास रुखसत हो चुके हैं। तब तक मस्जिद अक्सा बनकर तैयार हो गया था। और उसी एरिया की जगह को यहूदी जो है हैकले सुलेमानी कहते हैं। कोई अलग से कोई जगह है नहीं, हैकले सुलेमानी। अब ताबूत शकीना को वो क्यों हासिल करना चाहते हैं? वो उनके दिमाग में एक बात है कि अगर ताबूत शकीना हमें मिल जाए तो हम पूरी दुनिया को फतह कर लेंगे और पूरी दुनिया पर हम राज करेंगे। यही उनके दिमाग में बात है। और इसीलिए वो ताबूत सकीना को ढूंढते हैं, सर्च करते हैं। उनके बंदे चारों तरफ लगे हुए हैं, सर्च करते हैं कि वो कहाँ है, कैसे मिलेगा, कि हम पूरी दुनिया पर काबिज हो जाएं और दुनिया के लोगों को अपने मुट्ठी में ले लें और सबको फतह करके हम जैसा चाहें वैसा करें। उनके सबसे मेन मकसद यही है, ताबूत सकीना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से 500 साल पहले एक बहुत जालिम बादशाह गुजरा है। बहुत बड़ा जालिम वो था और उसने ताबूत शकीना को अपने साथ ले गया। उस बादशाह ने ताबूत शकीना को अपने साथ ले गया और तब से वो यहूदी परेशान है। तभी से वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि ये ताबूत सकीना कहाँ गया। कुछ लोग कहते हैं कि यह तुर्की के अंतालिया में है। ताबूत सकीना को कुछ लोग कहते हैं कि ये तुर्की के अंतालिया में है, और बाज़ लोग कहते हैं कि फ़लस्तीन के एक झील में है। और जब हज़रत मेहदी आएंगे तो वो भी ताबूत सकीना को ढूंढेंगे, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी से उनको मिल जाएगा। अल्लाह के हुक्म से उनको मिलेगा ये ताबूत सकीना। तो ये है ताबूत सकीना और हैकले सुलेमानी। मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैंने थोड़ा थोड़ा ढूंढ कर इसको बताने की आप लोगों के सामने कोशिश की हूँ, और हो सकता है हमसे ज़्यादा आप लोग जानते हों। तो मेरे हिसाब से हैकले सुलेमानी कोई अलग जगह नहीं है, वही मस्जिद अक्सा का जो एरिया है, जो जगह है, उसी को वो यहूदी हैकले सुलेमानी कहते हैं। और ताबूत सकीना आपको पता ही है कि ताबूत है, बहुत खुशबूदार पेड़ का है, जिसका नाम शमशाद है और बहुत मजबूत है। वो अल्लाह के तरफ से अता किया हुआ ताबूत है। कोई दुनिया में कोई किसी ने नहीं बनाया, अल्लाह के तरफ से दिया हुआ वह ताबूत है। और सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अता किया था। वो चलते चलते हर पैगंबरों तक चलता आया, और उसी के लिए वो
उनको ये लगता है कि ताबूत सकीना मिल जाएगा, और जैसे बनी इसराइल के लोग इस ताबूत सकीना से बहुत कुछ कर लेते थे, जंग को जीत जाते थे, बहुत कुछ हासिल कर लेते थे, तो हम भी कर लेंगे, पूरी दुनिया को कब्ज़ा में अपने ले लेंगे, जिसको चाहेंगे मारेंगे, जैसे आज मार रहे हैं, बच्चों को यतीम कर रहे हैं, माँ बाप से बच्चों को छीन रहे हैं, उनको बम से उड़ा दे रहे हैं, उनको हॉस्पिटल को बम से उड़ा दे रहे हैं, उनके पूरे एरिया को, उनके घर को बर्बाद कर दे रहे हैं। तो वही हैं जो पूरी दुनिया पे काबिज होना चाह रहे हैं। तो मुझसे अगर इस हैकले सुलेमानी और ताबूत सकीना को बताने में कुछ गलतियां अगर हुई हों तो अल्लाह माफ़ करे और आप लोग भी माफ़ करें, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में। जो था हमने आप लोगों को बता दिया, कुछ पढ़ के, कुछ सुन के, कुछ इधर उधर से करके तो हमने बताया। तो बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।